Uh, in the previous class, we were discussing about the bare provisions of the Indian Evidence Act, and earlier we have already discussed whether whether the estoppel is a part of the rule of evidence or substantive law. And after that, I will start section 115. And regarding that point, I had quoted that here the word person. And as you know that the person means here person that is the human being, companies, all these persons. म्यूट आप लोग आप म्यूट कर लें जो भी हो म्यूट आप कर लें yes. So at that point I have already told you that the here estoppel is not applicable only to against the man woman transgender, but it is also applicable to the against to the company company government like that. That's why word here is the person has been used. And there are three methods uh, of the representation. How a person who represents to other persons, that is the by declaration or act or omission. These are the three modes by which any person can represent. And what is the purpose, whether he was doing declaration, act or omission intentionally or by mistake. Here that must be intentionally. Intentionally what is very important here. There is some confusion here. I wanted to clarify the confusion here. You have to intention that on your declaration, act or omissions other persons do something, whether you are well aware about the facts, whether fact is true or wrong, about that things it doesn't talks. It talks about intentional. जैसे मान लीजिए कि किसी फैक्ट को मुझे मालूम नहीं है कि ये फैक्ट गलत है, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट गलत है, एक्चुअल में फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है और हमने पार्थ को बोल दिया कि हाँ यार इंफॉर्मेशन सही है, तुम इसके बेसिस पे काम करो, और कल को पार्थ ने उस पर काम कर दिया, कल को डिस्प्यूट होता है तो आई कैन नॉट टेक डिफेंस दैट द आई वाज नॉट अवेयर वेदर द फैक्ट वाज राइट और रॉन्ग. नो, at that point it does not talk. It talks about that only your intention must be that on the basis of information some other persons must do something. For example, if you see the illustrations here, the illustration is the illustration there are two illustrations. One illustrations, there are two illustration. One illustration is the section 115 and another illustration is the section 143 of the Transfer of Property Act. You should read combined these two illustrations and you becomes very clear, you becomes clear what is the point here, the intention. Intention must be for two purposes, either causing something or permitting something. Causing और permitting में अंतर क्या है? Causing means you are instigating himself. जैसे मान लीजिए हम इंस्टिगेट कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उसमें काजिंग होगा. और जहां पे पैसिव अलाउ कर रहे हैं, आप परमिट कर रहे हैं, जैसे कि वो हमसे आपसे पूछा कि मुरारी सर ये इंफॉर्मेशन सही है क्या, इसमें मैं काम कर लूं, मैंने कहा यस यू कैन डू दिस, ये हुआ परमिशन, हुआ परमिट हमने किया. काजिंग का मतलब हुआ कि मैंने खुद ही स्टूडेंट्स को बुला करके खुद ही मैंने उसको कहा कि ये काम तुम सब करोगे तो ये तुम्हें फायदा होगा, तो वह काजिंग हुआ. तो यहाँ पे दो पार्ट हैं, काजिंग और परमिटिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. एनी स्टूडेंट्स हु इज फील अनकंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज? if you feel uncomfortable in Hindi language, please let me know, otherwise I may discuss in the Hindi. Okay, no problems. So here is that there are two parts, causing और permitting. तो ये दोनों में डिफरेंस होगा. लॉ पढ़ने का सबसे एक अच्छा तरीका यही होता है कि ध्यान रखो कि इस वर्ड को अगर हम रखेंगे, अगर काज को रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा और इसको रिमूव करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा. तो इस तरह से लॉ का पॉइंट हमेशा याद हो जाता है. काजिंग और परमिटिंग दोनों पार्ट को ध्यान में रखना है. काजिंग खुद ही बुला करके इंस्टिगेट किया, परमिटिंग तुम खुद ही आकर हमसे पूछ लिए और मैंने उसको परमिट कर दिया. अनदर पर्सन्स टू बिलीव ए थिंग टू बी ट्रू, इट मीन्स देयर मस्ट बी टू पार्टी. वन पार्टी, there must be two persons. For example, one side A, other side the Z. A by his declaration, act or omission caused or permitted another person. That another person here means
दैट इज द जेड। टू बिलीव ए थिंग टू बी ट्रू, उसको बिलीव करा देता है कि यह फैक्ट ट्रू है। एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, और वह व्यक्ति इस तरह के बिलीव पर, इस तरह के स्टेटमेंट पर वह व्यक्ति कुछ करता है, वह बिलीव करके कुछ करता है। तो कितने से कंडीशन हो गए? अब कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन। दूसरा कंडीशन ये है कि बाय सच डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन पर्सन हैज आइदर काज्ड और परमिटेड। थर्ड कंडीशन है कि बाय दैट मेथड he has a caused believing a fact to be true। अब वो फैक्ट ट्रू है, रॉन्ग है, दैट इज इमेटेरियल, लेकिन उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बिलीव कराता है कि ट्रू है। एंड फोर्थ कंडीशन इज दैट अपॉन बिलीविंग सच इंफॉर्मेशन एज ए ट्रू, other party has acted something। That's why on that point, fourth point, there is a leading case mentioned in your syllabus। इसी पॉइंट पर सारा का सारा केस डिपेंड करता है। आपके सिलेबस में जितने केसेस हैं इसी पॉइंट पर है। अनदर पर्सन टू बिलीव ए थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव। इसे ए निकल करके आता है कि जो आप उसको नॉलेज होना चाहिए कि वेदर फैक्ट इज ट्रू और नॉट, आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होना चाहिए। अगर ही इज वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट, वेदर फैक्ट इज ट्रू और रॉन्ग, लेटर ऑन ही कैन नॉट गेट बेनिफिट ऑफ दैट। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पार्थ को इंस्टिगेट किया कि पार्थ एक काम सही है, तुम पार्थ करो, और पार्थ को मालूम है कि यह काम सही नहीं है, उसको मालूम है कि सर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, फिर भी सोच रहा है कि चलो यार कर देते हैं, कल को स्टॉपेज इनके खिलाफ लगा करके रेमेडी वसूल लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि दूसरे पार्टी को उस फैक्ट के बारे में अवेयरनेस न हो। इफ बोथ द पार्टीज नो द ट्रू, in that circumstances estoppel will not be applicable। That's why second part, there is a one case mate, there is in your case mate one case is the Madanappa something case was that, this case was the, I think this was the, wait 1 minute, yes, on that point here the case was the RS Madanappa versus Chandramma। What happened in this case? In this case, doctrine of estoppel was not applicable। Why doctrine of estoppel was not applicable? Because other party was knowing that he was not the owner of that property। That's why if both the parties know about the true fact, in that case estoppel against other parties shall not be applicable। On that point, leading case is that RS Madanappa versus Chandramma। This case I will discuss after this class। This part is that, yes, in that circumstances neither he nor his representative shall be allowed in any suit or in any proceeding। For what purposes? To deny the truth of that things। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। A intentionally and falsely leads B to believe that certain lands belong to A। A ने क्या किया? इंटेंशनली एंड फाल्सली। यहाँ पे दो पार्ट था, एक तो इंटेंशन था और दूसरे फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। दोनों पार्ट था इसमें। इंटेंशन था एंड फाल्सली लीड्स बी को लीड करता है टू बिलीव ए सर्टेन लैंड्स टू बिलोंग टू ए। ए ने बी को कहा कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, मैं ही इसका ओनर हूं, तुम इसको खरीद लो। और बी को इस बात का नॉलेज नहीं था कि ए इज नॉट द ओनर, एंड देयर बाय इंड्यूस्ड बी टू बाई एंड पे फॉर इट। अब पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट ए के साइड से था। अब दूसरा पार्ट क्या होता है? बी ने क्या किया इस बात को, द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे बीच में कुछ मिसिंग है। बीच में मिसिंग ये है कि ए ने जब बी को लीड किया तो बी ने इस बात पर बिलीव करते हुए ए की प्रॉपर्टी को खरीद लिया, जबकि एक्चुअली में ए उस समय ओनर नहीं था। जब ए ओनर नहीं था तो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होगी? नो वन कैन
ट्रांसफर बेटर टाइटल। अब बी को लॉस हो गया, लेकिन बी का लक बहुत ही अच्छा था। बी का लक ये था कि बाद में वो प्रॉपर्टी जो कि ए ने फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर किया था, ए के ओनरशिप में आ गई। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. अब यहाँ पे ए को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ए के खिलाफ स्टॉपेज लगेगा। अब ए नहीं कह सकता कि व्हेन एट दैट टाइम व्हेन आई सोल्ड दैट प्रॉपर्टी आई वाज नॉट ओनर। तो इस तरह से यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेज अप्लीकेबल होगा। ओके, एक सिमिलर इलस्ट्रेशन लेते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन को ये इलस्ट्रेशन टीपीए का इलस्ट्रेशन और क्लियर कर देगा। जैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर एक आदमी ओनर नहीं है तो बाद में कैसे ओनर हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ए इज ए हिंदू हु हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर, बी सेल्स टू थ्री लैंड्स एक्स वाई एंड जेड। ए क्या है? एक बी है, बी के का बेटा ए है, तो उसमें क्या करता है, ए के पास पार्टीशन का क्लेम कर देता है और इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी बी के हैंड में है और कुछ प्रॉपर्टी ए के हैंड में है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ जो अपने फादर की प्रॉपर्टी थी उसको भी शो किया कि आई एम ओनर ऑफ होल प्रॉपर्टी, और जेड को इस बात के लिए इंस्टिगेट किया। जे को लगा कि यार ए बी का ही सन है, तो हो सकता है कि बी ने अपने सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया हो ए को। एक गुड फेथ, जेड गुड फेथ में ए की सारी प्रॉपर्टी परचेज कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में पता चला कि ए कुछ प्रॉपर्टी का ओनर था ही नहीं, कुछ प्रॉपर्टी का ओनर उसका फादर था। इस तरह से जेड को लॉस हुआ। लेकिन फॉर्चुनेटली जे का फॉर्चुनेट इस तरह का था कि बी का डेथ हो गया। जब बी का डेथ हुआ तो ए उसका लीगल एयर था और वह सारी प्रॉपर्टी ए को शिफ्ट कर गई। अब ए को शिफ्ट हो गई तो ए जिस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं था उस प्रॉपर्टी का भी ओनर हो गया। अब जेड ने क्लेम कर दिया कि नहीं, वह प्रॉपर्टी जिसका आप ओनर नहीं थे लेकिन सेल कर चुके थे, वह प्रॉपर्टी अब मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। तो हियर ए कैन नॉट बी अलाउड टू टेक एस्टोपेल। एक बार और इलस्ट्रेशन पढ़ देता हूं, तो कहानी टाइप में था। A Hindu who has separated from his father B says to C three fields X, Y and Z. A ने C को तीन प्रॉपर्टी सेल किए X, Y and Z को, representing that A is authorized to transfer the same. A ने कहा कि मैं तीनों प्रॉपर्टी का अथराइजेशन है। Are these fields Z does not belong to A, it having been retained to B on the partition, but B's die A as heir after Z. C not having rescinded the contract of sale, he may require A to deliver Z to him. इलस्ट्रेशन दोनों क्लियर हो गया ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इलस्ट्रेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, इसको पढ़ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया स्टॉपेल कब कब अप्लाई होगा कब नहीं होगा। अब 116 में आते हैं, दो पार्ट हैं। 116 में दो पार्ट है, पहला पार्ट टेनेंट का है और दूसरा पार्ट लाइसेंसी का है। 116 अब लाइसेंसी 116 में भी यूज हुआ है और 117 में भी यूज हुआ है लाइसेंसी। तो लाइसेंसी के बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। तो टेनेंट का सिचुएशन देखिए। जब टेनेंट है तो इसका मतलब कोई ना कोई लैंडलॉर्ड है। टेनेंट का मतलब ही है कि लैंडलॉर्ड है। अगर हम कहें कि 2 नंबर का पोजीशन रखता है, पार्थ का क्लास में 2 नंबर का पोजीशन है, इसका मतलब ये है कि 1 नंबर का पोजीशन किसी और के पास है। तो मान लीजिए कि 1 नंबर का पोजीशन नानी के पास है, तो जब 2 कहते हैं तो मतलब एक कहीं ना कहीं हिडन है। जब हम टेनेंट कहते हैं तो कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड हिडन रहता है। अब यहाँ देखो, नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बात को ध्यान में रखना है। No tenant of immovable property or a persons claiming through such tenant shall
ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए टेनेंसी, मिला जुला कर ये है कि जब तक आप टेनेंट रहते हैं इमोल प्रॉपर्टी का, उस दौरान आप लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। आप एक बार घर लिए, आप टेनेंट हैं, लैंडलॉर्ड है, तो जब तक आप घर में उसके रह रहे हैं तब तक आप एक क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैं तुम्हें किराया नहीं दूंगा, तुम लैंडलॉर्ड हो ही नहीं। नहीं, जब एक बार एग्रीमेंट बन चुका, वो लैंडलॉर्ड है, जब तक आप टेनेंट के रूप में रहते हैं, यू कैन नॉट डिनाई हिज his title, that is called tenant, and this estoppel is against the tenant and licensee। यह सेक्शन 116 किसके estoppel के खिलाफ बात करता है? both estoppels is applicable against the tenant and licensee। tenant cannot, tenant of his property, tenant of immole property cannot be allowed to deny the title of the landlord। सेम सिचुएशन लाइसेंसी पर भी है। लाइसेंसी आप which property of immovable property, licensee of immovable property shall not be allowed to deny the title of the person who has given the license। मतलब कि टेनेंट हो या लाइसेंसी हो, जब तक आप टेनेंट लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी का इमोल प्रॉपर्टी का पोजीशन आपके पास है, आप कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप लैंडलॉर्ड या लाइसेंसर के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पे लाइसेंसी किसके बारे में बात हो रही है? इमोल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। यही चीज वहां पे आपको मिस करेगी 117 में। और एक चीज वहां पे और मिस करेगी, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है टाइटल, वहां पे वर्ड टाइटल नहीं यूज होगा, वहां पे यूज होगा अथॉरिटी। ये दो वर्ड हमें 117 से 116 को डिफर करेंगे। अब आते हैं 117 में। 117 जो है, स्टोपेल अगेंस्ट हुम? स्टोपेल अगेंस्ट द एक्सेप्टर, बेली एंड लाइसेंसी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि 115 से लेकर के 117 तक इसमें दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है जनरल, जनरल स्टोपेल जो 115 बात करता है। स्पेसिफिक स्टोपेल 116 और 117 बात करता है। स्पेसिफिक स्टोपेल के कितने पार्ट हुए? स्पेसिफिक स्टोपेल के 5 पार्ट हुए। पहला हो गया आपका टेनेंट, दूसरा हो गया लाइसेंसी, तीसरा हो गया एक्सेप्टर, चौथा हो गया बेली, पांचवा हो गया लाइसेंसी। ये 5 जो हैं ये स्पेसिफिक स्टोपेल की बात करते हैं। अब एक्सेप्टर, बेली, लाइसेंसी आप पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में डिफरेंस कर देता हूँ, लाइसेंसी 116 में और 117 में डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी देखो, दोनों में सिमिलरिटी किस बात का है? इन दोनों में सिमिलरिटी ये है, स्टोपेल अगेंस्ट लाइसेंसी या स्टोपेल अगेंस्ट लाइसेंसी, ये सिमिलरिटी है। यहाँ पे स्टोपेल लाइसेंसर के खिलाफ नहीं है, यहाँ पे स्टोपेल किसके खिलाफ है? यहाँ पे स्टोपेल लाइसेंसर। म्यूट कर देता हूँ, म्यूट ऑल। यहाँ पे स्टोपेल अगेंस्ट लाइसेंसी के खिलाफ है। अब डिफरेंसेस क्या है दोनों में? देखो, वहां पे बात आ रही थी लाइसेंसी ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, वहां पे लाइसेंसी के बारे में कह दिया जा रहा था किस तरह का लाइसेंसी? लाइसेंसी वह लाइसेंसी जो इमोल प्रॉपर्टी का होगा। अब यहाँ पे लाइसेंसी है, जनरल लाइसेंसी है, चाहे मोबाइल प्रॉपर्टी का हो, इमोल प्रॉपर्टी का हो, या किसी भी चीज का लाइसेंसी हो, जहां पर भी जिस तरह का भी लाइसेंसी हो, मतलब कि 117 वाइडर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 116 जो है लाइसेंसी ऑफ इमोल प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको कन्फाइन कर दे रहा है, और यहाँ पे लाइसेंसी के रिगार्डिंग इस तरह का कोई कंडीशन यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे 117 वाइडर है। अब बात रही दूसरे डिफरेंस की, लाइसेंसी कैन नॉट डिनाई टाइटल ऑफ पोजीशन ऑफ लाइसेंसर। टाइटल ऑफ पोजीशन ऑफ लाइसेंसर, देखो टाइटल ऑफ ओनरशिप अलग है, पोजीशन का टाइटल एक अलग होता है। जैसे पोजीशन का टाइटल ये होता है कि हमने लीज पर पोजीशन ले रखा है, वो भी हमारे पास पोजीशन है। जब हमने लीज पे पोजीशन ले रखा है तो उसको मैं सब लीज कर सकता हूँ, उसका मैं लाइसेंस दे सकता हूँ। तो इस तरह की बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर है कि आप किस चीज को डिनाई नहीं करेंगे, आप लाइसेंसर के पोजीशन के टाइटल को डिनाई नहीं करेंगे।
लाइसेंसर के पोजीशन के टाइटल को डिनाई नहीं करेंगे। यहाँ पे किस चीज की बात है? आप यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं है, यहाँ पे यहाँ टाइटल की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि अथॉरिटी टू मेक लाइसेंस। यहाँ पे लाइसेंस बनाने की अथॉरिटी है, उसको आप डिनाई नहीं करेंगे। एक बात और बता दूं, चाहे जितनी किताब पढ़ लेना, इन दोनों में डिफरेंस कभी नहीं मिलेगा। सारा का सारा पॉइंट तुम्हें 115 पर ही मिलेगा, लेकिन बाय चांस दुर्भाग्य हुआ तो इंटरव्यू में पूछ लेगा कि भाई दोनों में लाइसेंस ही यूज हुआ है, 16 में हुआ है, 17 में भी हुआ है। इसीलिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि 116 को मारें ऑप्शन कि 117 को मारें। एकदम सबसे अच्छा तरीका यह है कि देख लेना उसमें कि लाइसेंसी आप इमोल प्रॉपर्टी की बात करता हो, तब सिंपल सी बात है 116 की बात करता हो। सिंपल लाइसेंसी की बात करता हो तो वह जाएगा 17 में। अगर यहाँ पे टाइटल के डिनाई की बात करता हो तो 116 में जाएगा। अथॉरिटी को डिनाई करता हो तो वहां पे 117 को जाएगा। और इंटरव्यू का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से हमने 115, 16, 17 को डिस्कस कर दिया। बाकी कुछ चीजें हैं, टाइम का वेस्ट हुआ है, आप पढ़ लेना। एक केस है आपका छगन लाल केशव लाल मेहता वर्सेस पटेल नरन दास हीरा भाई हरि भाई। इस केस में 116 के इंग्रेडिएंट डिस्कस किए गए हैं, इसको आप पढ़ लेना। इसमें कई पॉइंट डिस्कस किए गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस केस में कई पॉइंट के साथ साथ देखो, इस केस में एक खासियत ये है कि 3 पॉइंट को डिस्कस किया गया था। छगन लाल के केस में क्या क्या डिस्कस किया गया था? एक डिस्कस किया गया था आपको इंग्रेडिएंट क्या है सेक्शन 115 का, दूसरा क्या था डिफरेंस बिटवीन स्टोपेल एंड एडमिशन, और तीसरा था कि स्टोपेल अगेंस्ट राइट, राइट के खिलाफ स्टोपेल यूज नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि स्टोपेल सिर्फ फैक्ट के खिलाफ यूज होता है, राइट के खिलाफ स्टोपेल यूज नहीं होता। इन तीनों पॉइंट का इंग्रेडिएंट अगर आपको देखना हो तो आपको पढ़ना होगा छगन लाल का केस, और उसमें ऑनरेबल जस्टिस आरबी मिश्रा ने इन्होंने तीनों को कोट किया है, इसको पढ़ लेना। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टोपेल एंड वेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को वहां पे दिल्ली डीजीएस में कई बार इसको पूछा गया है, वेबर और स्टोपेल का। और जब तुम लोग सेकेंड ईयर में जब जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 में कई डॉक्ट्रिन है, एक डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का ये था उसमें कि अगर फंडामेंटल राइट तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में हो फिर भी जान ही रहो, वेबर का मतलब ये हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर जब हम आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो वहां पे एक क्वेश्चन राइज हुआ था, वेबर मीन्स वेव करना, अपने राइट का त्याग करना। अमेरिका में डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर अप्लीकेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में एक व्यक्ति कंप्रोमाइज करके अपना फंडामेंटल राइट को वेव कर सकता है, त्याग कर सकता है, छोड़ सकता है। उसी तरह का हमारे यहाँ एक केस आया, केस का नाम था बसेसर नाथ वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स दिल्ली राजस्थान एंड अनदर, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में भी यही आर्गुमेंट किया गया था कि सर अमेरिका में डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर अप्लीकेबल है तो इंडिया में भी अप्लीकेबल होना चाहिए, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट को व्यक्ति वेव कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव में यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? पहली बात की देखो, वेबर क्या होता है, वेबर के जो बैकबोन है वो कंप्रोमाइज पर डिपेंड करता है। अब इस तरह का अगर राइट वेव कराएंगे तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक पूंजीपति है, वह अपने फैक्ट्री में जैसे एम्प्लॉयमेंट देगा वो पहले से एक फॉर्मेट भरवा देगा कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट को हमारे यहाँ क्लेम नहीं करेंगे, हम सारे फंडामेंटल राइट को वेव करके आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं। और हमारे यहाँ की जनता जब ये कानून पास हो रहा था, मतलब जब ये चैलेंज किया गया था 1958 का जजमेंट था नियर अबाउट, उस समय नियर अबाउट 70% पॉपुलेशन हमारे इलिटरेट था। मैं गलत हो सकता हूँ, 70-60%। तो हमारे यहाँ ह्यूज लेवल पे जो व्यक्ति हैं इलिटरेट हैं, दे आर नॉट मच मोर अवेयर लाइक द अमेरिकन। तो हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर को अप्लीकेबल नहीं किया गया। तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट ये है कि इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 13 डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर इज नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि वेबर और स्टोपेल में अंतर क्या है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो दो केस हम डिस्कस करेंगे। ये तो ये सेकेंड वाला जो केस है बसेसर नाथ का वेल नोन केस है, ये बहुत पॉपुलर केस है। लेकिन एक
और भी केस है, प्रवेश चंद्र दालुई वर्सेस विश्वनाथ बनर्जी एंड अदर, ये भी लैंडमार्क जजमेंट है। इन दोनों जजमेंट के हिसाब से कहा गया था कि वेबर और स्टोपेल में अंतर क्या है। तो देखो इसका ये है, टेबल के हिसाब से बता देता हूँ, इजी रहेगा। वेबर जो होता है कि देयर मस्ट वॉलंटरली एंड इंटेंशनल रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट आर कंडक्ट। यहाँ पर व्यक्ति के बीच में कंप्रोमाइज होता है, दोनों व्यक्ति वॉलंटरली बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और एक व्यक्ति अपने राइट को वेव कर देता है। लेकिन स्टोपेल के केस में यहाँ पे इंटेंशन ऑफ पार्टी इज इमेटेरियल। अपोजिट पार्टी का क्या इंटेंशन है दैट इज डजेंट मैटर। यहाँ पे इंटेंशन इस बात का भी डजेंट मैटर है कि आप फ्रॉडुलेंट करना चाहते थे कि नहीं करना चाहते थे। तो मतलब हमारे यहाँ वेबर के केस में दोनों पार्टी का वॉलंटरली रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट जरूरी है, लेकिन स्टोपेल में अदर पार्टी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लीकेबल स्टोपेल एप्लीकेबल होगा। बेनिफिट क्या है, यहाँ पे एक पार्टी को लॉस होता है, दूसरे पार्टी को गेन होता है। क्यों लॉस होगा, क्यों गेन होगा? जब हम अपने फंडामेंटल राइट को वेव करेंगे कि ठीक है चलो भाई, हम तुम्हारे खिलाफ अगर हमारी मौत भी हो जाएगी तो हम कंपनसेशन का क्लेम नहीं करेंगे, तुम हमें गंदा पानी भी पिलाओगे, साफ पानी भी नहीं दोगे, खाने पीने का व्यवस्था नहीं करोगे, फिर भी हम आर्टिकल 21 का क्लेम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक पार्टी को लॉस हो रहा है और दूसरा पार्टी जिसके फेवर में वेव कर रहे हैं उसको गेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे लास्ट गेन जैसा कोई कंडीशन यहाँ नहीं होता है। काज ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हम बता रहे थे कि जब हम स्टोपेल को रूल ऑफ एविडेंस मानेंगे तो वहाँ काज एराइज नहीं होगा, अगर सब्सटेंटिव लॉ मानेंगे तो काज एराइज होगा। और फाइनली मैं कंक्लूड किया था कि स्टोपेल को रूल ऑफ एविडेंस ही मानेंगे अगर एविडेंस की बात करते हैं तब। तो वेबर आपको काज ऑफ एक्शन प्रोवाइड कराता है, लेकिन स्टोपेल जो है काज ऑफ एक्शन प्रोवाइड नहीं कराता, इसके बेसिस पर आप केस फाइल नहीं कर सकते। जजमेंट है, वेबर कह रहा है कि फ्रॉम जजमेंट ऑफ द कोर्ट वेबर इज नॉट एराइज। अगर कोई जजमेंट आ जाए कोर्ट का आपके खिलाफ आ जाए तो उसको वेबर नहीं मानेंगे। लेकिन स्टोपेल जो है जजमेंट ऑफ कोर्ट से एराइज हो सकता है। जैसे कि स्टोपेल तीन तरह का होता है, स्टोपेल बाय रिकॉर्ड या जजमेंट, स्टोपेल बाय स्टोपेल बाय डीड, स्टोपेल बाय कंडक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेबर जो है जजमेंट से राइज नहीं हो सकता, लेकिन स्टोपेल जो है जजमेंट से राइज हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है वेबर, दो व्यक्ति आपस में बैठ करके कंक्लूड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पॉइंट से एराइज होता है। लेकिन ये स्टोपेल जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल का पार्ट नहीं है, ये रूल ऑफ एविडेंस का पार्ट है। मतलब कि एक वर्ड में हम कहें तो वेबर जो है वेबर सब्सटेंटिव राइट का पार्ट है, स्टोपेल है रूल ऑफ एविडेंस का है। एप्लीकेशन क्या है, वेबर इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे अभी भी मैं बता रहा था ना कि बशेश्वर नाथ का केस है, हर एक बच्चा जो भी एंट्रेंस देने आता है वो भी जानता है कि बशेश्वर नाथ का केस में डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर की बात होती है। तो वेबर इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट, नो वन कैन वेव हिज फंडामेंटल राइट, स्टोपेल इज नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट द पार्लियामेंट। इस तरह से वेबर और स्टोपेल में हमने क्लियर कर दिया। और जब भी तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा तो दोनों केस लिख देना, प्रवोस चंद्रा दालुई एंड अदर वर्सेस विश्वनाथ बनर्जी एंड अदर। इसमें देख रहे हो ना कि यहाँ पे कह रहा है कि वेबर के लिए वॉलंटरली होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए, और यहाँ पे इंटेंशन इमेटेरियल है। तो इसी सब जजमेंट को मैं थोड़ा बहुत ओरिजिनल जजमेंट खोल करके इसको पढ़ लेता हूँ और वहीं से इसको सेट कर लेता हूँ मैं, और कुछ नहीं करता हूँ। तो इस तरह से वेबर और स्टोपेल के हो गए। अगर डीजीएस का एग्जाम देना होगा तो रट जाना, बाकी नहीं देना हो तो एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह का एक और केस आया हुआ था, बहुत ही अच्छा जजमेंट आया हुआ था, गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस अरुण सुशील कुमार भक्खड़ एंड अनदर। बहुत ही अच्छा जजमेंट था। इसमें क्या इशू था बता देना चाहता हूँ। इसमें जैसे कि हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारा एलएलबी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में एग्जाम होते होते फाइनल हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक लड़की को गोल्ड मेडल हो गई, मान लीजिए कि नेहा को गोल्ड मेडल हो गया, नेहा ने फाइनल ईयर में जाकर के हाईएस्ट मार्क सिक्योर कर दिया।
लेकिन आदित्य के साथ इनजस्टिस हुआ। आदित्य को लगा कि नहीं, हमारी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, कोई ऐसे टीचर के हाथ में चली गई है जो कि जबरदस्ती बस ऐसे ही पूरम पूरा कर दिया है। अब आदित्य ने क्या किया कि फाइनल ईयर में उसे नेहा से कहा कि नेहा कैसे टॉप हो सकती है, उसका मार्क्स हमसे कम आ रहा था। नेहा इस बात को लेकर आदित्य ने रीअसेसमेंट के लिए डाल दिया, रीवैल्यूएशन के लिए डाल दिया कि हमारे कॉपी का रीवैल्यूएशन किया जाए। जब रीवैल्यूएशन हुआ इस केस में तो आदित्य के मार्क्स ज्यादा आ गए। अब मान लीजिए कि नेहा के मार्क्स 2000 हैं तो आदित्य के मार्क्स 2050 हो गए। अब नेहा क्लेम कर रही है कि मुझे गोल्ड मेडल मिले, आदित्य क्लेम कर रहा है कि मुझे गोल्ड मेडल मिले। नेहा कर रही है कि नहीं, तुम्हारा तो पहली बार जो आया था वो तो तुम्हारा 1900 ही आया था, रीअसेसमेंट किए तब तुम्हारा 2050 आया हुआ है। तो आदित्य कहना चाहिए जैसे भी आए मेरे मार्क्स हाईएस्ट है, मुझे दो। अब इस बात को नेहा को गोल्ड मेडल मिले कि आदित्य को गोल्ड मेडल मिले, यूनिवर्सिटी का मुंह फंस गई। यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि चलो नेहा को गोल्ड मेडल देते हैं, आदित्य को नहीं देंगे। अब आदित्य को ये बात बुरी लगी, आदित्य ने कोर्ट में मैटर पिटिशन फाइल कर दिया। अब आदित्य का कहना था कि गोल्ड मेडल मुझे मिले, नेहा को न मिले। अब सिंगल बेंच के डिवीजन का जजमेंट आया तो सिंगल बेंच ने आदित्य को अलाउ कर दिया कि आदित्य को गोल्ड मेडल मिले। अब डिवीजन बेंच के पास मैटर गया तो डिवीजन बेंच ने कहा कि नहीं, आदित्य को गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? नेहा को मिलेगा। आदित्य को क्यों नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें दो डॉक्ट्रिन है। एक तो डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट। ये डॉक्ट्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। जब तुम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ते होगे तो उसमें शायद एक सेक्शन होगा, सेक्शन 35 होगा, जिसमें इलेक्शन की बात करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन वही होगा, चेक कर लेना तुम लोग, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। उसी सेक्शन 35 में ही एक डॉक्ट्रिन आएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट। नो वन कैन एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट एट द सेम टाइम। तो वो डॉक्ट्रिन का जिस्ट वही है, ये डॉक्ट्रिन 35 का जिस्ट बनाता है। इस डॉक्ट्रिन को भी यहाँ पे कोट किया गया था। और साथ साथ में एक डॉक्ट्रिन ये भी है, अलिगेंस कंट्रेरिया नन एस्ट ऑडियंडस। अब देखो डिवीजन बेंच का रेशियो क्या था, डिवीजन बेंच ने क्यों आदित्य को अलाउ नहीं किया, क्यों नेहा को दिया, जबकि आदित्य के रीअसेसमेंट के मार्क्स ज्यादा आ गए थे। रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती लॉ में, रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर रीजनिंग लिख रहे हो यू आर ए वेरी गुड पर्सन, बाकी कहानी लिख दोगे 10 में 5 पाओगे, रीजनिंग लिखोगे 10 में 8 पाओगे। तो सुप्रीम डिवीजन बेंच का रीजनिंग ये था कि जब आदित्य रीअसेसमेंट का फॉर्म भर रहा था तो फॉर्म भरने के साथ ही एक कंडीशन था। एक इंस्टीट्यूट बना था दिल्ली गुजरात यूनिवर्सिटी का, उस इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति रीअसेसमेंट का फॉर्म तभी अप्लाई कर सकता है जब वह इस फॉर्म को भरे कि कोई भी मार्क्स अगर चेंजेज आते हैं तो चेंज मार्क्स के बेसिस पर किसी भी तरह का राइट क्लेम नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आदित्य जब अपना रीवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई कर रहा था तो उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा था कि अगर कोई चेंजेज आए भी तो मैं क्लेम नहीं करूंगा। तो कोर्ट ने कहा एक बार अगर आदित्य ने अपने राइट को वेव कर दिया है, वेव करके उस फॉर्म को भरा है, और जब रिजल्ट उसका आ जाता है उस चेंजेस के बेसिस पर वो क्लेम कर रहा है तो आदित्य को अलाउ नहीं किया जाएगा, आदित्य के खिलाफ स्टॉपेज लगेगा। बिकॉज आदित्य हैड बाय हिज कंडक्ट by applying by filling the form he had already waived his right, already he has waived the, and that point was subject to certain conditions। तो यहाँ पे आदित्य को नहीं मिला था। ये जो जब जजमेंट आया था तो कई न्यूज़पेपर ने इस जजमेंट के बारे में लिखा था। इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा था सिंगल बेंच के जजमेंट को, मैंने इंडियन एक्सप्रेस के जजमेंट को भी पढ़ा था। इसके बाद यहाँ लिखा हूँ डिवीजन बेंच का लिखा हूँ जो कि फाइनल है ये। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, रेस जुडिकाटा एंड स्टोपेल में अंतर क्या है। रेस जुडिकाटा और स्टोपेल। रेस जुडिकाटा तुम लोगों को जब शुरू में पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि स्टोपेल 3 तरह का होता है। पहला पॉइंट होता है स्टोपेल बाय जजमेंट और रिकॉर्ड, और इसका मतलब ये हुआ कि स्टोपेल 3 तरह का हो सकता है और स्टोपेल का रेस जुडिकाटा एक पार्ट है। रेस जुडिकाटा इज पार्ट ऑफ द स्टोपेल,
It means there are certain similarities, certain differences. So what are the similarity, what are the differences? That is the important point. जब सीपीसी पढ़ोगे सेक्शन 11 जब पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर में, तो वहां पे रेस जुडिकाटा और ब्रॉडर तुम समझ जाओगे, और तब तुम समझो कि रेस जुडिकाटा के दो पार्ट होते हैं। एक रेस जुडिकाटा होता है, एक कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा होता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो होता है सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 4 है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात होती है। और यहाँ पे हम आते हैं एक अदर पॉइंट पे। सोर्स क्या है रेस जुडिकाटा? रेस जुडिकाटा इज रिजल्ट ऑफ जजमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट का जो जजमेंट आता है उस बेसिस पर रेस जुडिकाटा अप्लीकेबल होता है। स्टोपेल तीन तरह के होते हैं। स्टोपेल जजमेंट से भी हो सकते हैं, डिड से भी हो सकते हैं, कंडक्ट से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोपेल वाइडर है और रेस जुडिकाटा नैरोवर है। इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि जब रेस जुडिकाटा अप्लीकेबल होगा तो एक कोर्ट के जुडिक्शन को सट कर देता है। कोर्ट इसका मतलब है कि कोर्ट पर इफेक्ट डालता है। ये सीधा सीधा कहता है कि कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन दैट मैटर। जो जजमेंट, जो फैक्ट फाइनली कोर्ट द्वारा डिसाइड हो चुका है वहां पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब एक लाइन में अगर कहें तो रेस जुडिकाटा जो है जुडिक्शन के कोर्ट को अफेक्ट करता है, लेकिन स्टोपेल किसको अफेक्ट करता है? स्टोपेल पार्टी को अफेक्ट करता है कि पार्टी इसके खिलाफ पार्टी रिट्रैक्ट नहीं कर सकती। एक तरफ तुम्हारा कोर्ट हो गया, एक तरफ तुम्हारा पार्टी हो गया। पब्लिक पॉलिसी क्या है? पब्लिक पॉलिसी यही है कि एक बार जजमेंट डिसाइड हो गया, देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन, देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन। ये तुम्हारा पब्लिक पॉलिसी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये इक्विटी पे डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारे कंडक्ट से कोई व्यक्ति अगर चेंज कर दिया अपना नॉर्म, अपना कंडक्ट, तो व्हाई यू शुड बी अलाउड टू रिवर्ट बैक। तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी, स्टोपेल इज बेस्ड ऑन द इक्विटी। पार्टीज अगर के प्रोस्पेक्टिव में देखें, इट बाइंड्स बोथ द पार्टीज। चाहे आप केस हारे हो, चाहे आप केस जीते हो, रेस जुडिकाटा दोनों पर अप्लीकेबल होगा। दोनों पार्टी दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। स्टोपेल इट बाइंड्स ओनली वन पार्टी, क्योंकि एक पार्टी का कंडक्ट था, उसने रिवर्ट बैक उससे नहीं किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि रेस जुडिकाटा स्टोपेल का पार्ट। रेस जुडिकाटा रिजल्ट ऑफ जजमेंट, स्टोपेल इज रिजल्ट ऑफ judgment, deed or conduct of party. Effect, it affects the jurisdiction of court, it affects the party. Here it is a public policy that litigation should be in, it is based on the equity. And here is that it is binds both the parties, it binds only one party. So wait for another class, I will start another class. I had already shared a link and that's why enjoy your time. लग रहा टाइम खत्म हो गया है, बचा है कुछ? लग रहा है बचा है क्या?